Hello students, how are you? I hope that you all are fine at your home during this COVID-19. So today we are going to start the remaining explanation of the chapter. As you all have, I expect that you all have seen the previous video regarding the explanation of the third chapter of your English literature, the fun they had. So today, once again, before starting the explanation, I would like to tell you the structure of this text. Okay. Now, once again, just remind, go back, keep yourself back, and you will remind that the narrative story centers around a very old book about a school, and mainly two characters are there. दो कैरेक्टर है ना, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, एंड आई होप दैट सभी ने देखा होगा. अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा होगा, पार्ट 2 जो है ये पार्ट 3 है, तो आप लोगों को ये समझ में बिल्कुल नहीं आएगा. ठीक है ना. ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन वी विल आल्सो डू द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस बुक, टेक्स्ट बुक. So let us go through the next slides, and here on this page you can also see that in our future the robots will be the teacher. और इस चैप्टर में हम लोगों को यही पढ़ना है. 2155 का ये पीरियड है जिसमें ये पूरा नरेट किया गया स्टोरी. एंड इन दिस narrative there is the mechanical teacher. In the form of mechanical teacher, robots works as a teacher. There is not a simple human as a teacher. Okay, so आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो कि रोबोट जो है 2155 ईस्वी में, मतलब आज से 100-150 साल बाद रोबोट्स विल टीच द स्टूडेंट. नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको एक्सप्लेन करना है, एंड यू विल राइट द आंसर. इफ आई होप दैट अगर आपने पढ़ा होगा, इफ यू हैव स्टडीड अटेंटिवली एंड वॉच्ड माय वीडियोस, लास्ट वीडियोस अटेंटिवली, सो देयरफॉर यू विल बी एबल टू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस आर गिवन here. First question, when did the story happen? This is for you. Everyone will start and write in the comment box. इन सारे questions के आंसर आप लोगों को comment box में लिखना है. ओके. And our second question, what did Margie write in her diary on 17th May 2155? And the next question, because these questions are the important points of our text, what do you know about a county inspector? As I have explained about the county inspector in last slide. And next points of explanations are, why does Margie hate school? You all will write these questions. Why does Margie hate school? And next is, what were the differences between the school of Margie's days and those of old days? Okay, and those of old days. Next, what do you know about the school room and the mechanical teacher? So students, let us explain once again the previous topic, and आई होप दैट यू ऑल हैव द बुक. आप सभी लोगों के पास बुक होगा. अपने अपने बुक्स को सामने रख लो आप लोग, और बुक्स को सामने रखने के बाद आई वॉज एक्सप्लेनिंग हियर ऑन पेज नंबर 15, लास्ट लाइन आई हैव एक्सप्लेन्ड. सो जस्ट मूव ऑन पेज नंबर 16. बट ही न्यू हाउ टू सेट इट ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर सो. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन. Who is the person? County inspector means when he visit the house just for making the correct to the mechanical teacher, county inspector did the same within a time. There it was again large and black and ugly with a big screen. Means अभी भी कुछ स्क्रीन पर प्रॉब्लम्स आ रहे थे, कुछ बड़े बड़े और भद्दे भद्दे जैसे के वर्ड्स आ रहे थे. मार्गी कैसे पढ़ती थी? हाउ डज मार्गी स्टडी? शी यूज टू रीड द टेक्स्ट फ्रॉम
the screen, okay, by scrolling with a big screen. Questions were asked, मतलब जो भी questions हैं बहुत ही जल्दी जल्दी अभी भी पूछे जा रहे थे. That was not so bad, ये उसके लिए बुरा नहीं था. अब ये question जो line now we are going to read, that is very important. The part she hated most was the slot where she had to put homework and test papers. मतलब सबसे ज़्यादा उसको हेट करने का पार्ट ये था कि उसको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स और टेस्ट पेपर देने पड़ते थे. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड. दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 year old. और उसको हमेशा इसको पंच कोड में लिखना पड़ता था और जब से वो 6 साल की थी तभी से उसे ये सारे काम करने पड़ते थे. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. और जो मैकेनिकल टीचर हुआ करता था एज अ रोबोट, वो किसी भी चीज़ों को मतलब कैलकुलेशन बहुत ही जल्दी करता था बिना टाइम लिए हुए. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड हर हेड. मीन्स आफ्टर डूइंग हिज वर्क, जब उसने पूरे मैकेनिकल टीचर को मेंटेनेंस अपना पूरा कंप्लीट कर दिया तो फिर एक बार फिर से वो मुस्कुराया और जैसे प्यार से उसके सर पर हाथ को थपथपाया जैसे बड़े लोग करते हैं. ठीक है. He said to her mother, it is not the little girl's fault, Mrs. Jones. And here you can see one more character, but she is the minor character, Mrs. Jones. Mrs. Jones is the mother of Margie. उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. ये लाइन आप लोग You can underline this line. I think the geography sector was geared a little too quick. मतलब ज्योग्राफी का जो सेक्टर था उसका गियर जो थोड़ा सा तेज हो गया था, इसलिए वो जल्दी आगे को बढ़ रहा था और क्वेश्चंस दे रहे थे. Those things happen sometimes. और ऐसी चीज़ें कभी कभी पर होती रहती हैं मैकेनिकल टीचर्स में. और जैसा कि हम जैसे टीचर, जैसा कि एज आई एम टीचिंग यू, टीचर्स में ऐसा नहीं होगा लेकिन मैकेनिक्स में वो कम हो सकता है. जैसे कि आपकी कोई मशीन थोड़ी सी इधर उधर हो गई तो वो जल्दी काम करने लगता है या फिर एकदम डल हो जाता है या धीरे हो जाता है, स्लो हो जाता है. आई हैव स्लोड इट अप एन एवरेज 10 year लेवल. मतलब वो काउंटी इंस्पेक्टर बता रहा है कि मैंने अब इसको 10 वर्ष की बच्ची के वर्क करने के लायक इसको बना दिया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन. और मतलब उसने पूरा कंप्लीट करके सेटिस्फैक्ट्री करके फिर से उसके शरीर को पैट किया और फिर वो आगे को बढ़ा. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्गी अभी भी निराश थी. शी वॉज नॉट लुकिंग वेरी हैप्पी येट. शी वॉज लुकिंग येट अ वेरी डिसअपॉइंटेड. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. वाई शी वॉज not happy? Because she has expected before coming the county inspector at her home that county inspector will take the mechanical teacher away from her home. मतलब जब काउंटी इंस्पेक्टर आया नहीं था तो उससे पहले उसने ये सोचा था कि काउंटी इंस्पेक्टर जब आएगा तो ये मैकेनिकल टीचर को लेकर के चला जाएगा. मीन्स उसका मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में. They had once taken Tommy's teacher away for nearby a month because his history sector had blanked out completely. Why she was thinking so? वो ऐसा क्यों सोच रही थी? क्योंकि एक बार टॉमी का भी जो हिस्ट्री वाला मैकेनिकल टीचर था उसमें गड़बड़ी कुछ आई थी तो उसको 1 महीने तक लेकर के रखा गया था दूर. मतलब घर से, उसके घर से बाहर मेंटेनेंस के लिए ले जाया गया था. सो उसने भी ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट किया था. दैट इज़ वाई शी वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल. सो शी सेड टू टॉमी. इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? कोई भी दूसरा स्कूल के बारे में क्यों लिखता है? टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज. और टॉमी ने ऐसे क्वेश्चंस पर बहुत ही सुपीरियर आइज से उसको देखा अपने, और फिर देखने के बाद वो बोल रहा है, नाउ ही इज जस्ट स्पीकिंग दैट बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. मूर्ख कहीं की, क्योंकि ये हम लोगों के तरह का स्कूल नहीं होता था ना. और फिर से वो बुक पढ़ करके जो एटिक के पास पाया था, सीढ़ियों के नीचे जो स्टोर रूम जैसा बना हुआ होता है, उस बुक को फिर से वो बता रहा है. उस बुक में जो पहले की 150 साल पहले की बातें लिखी थी उसको बता रहा है कि जो हमारा स्कूल है, पहले वाला जो स्कूल था वो हम लोग के स्कूल की तरह नहीं था. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. ये मतलब बहुत ही पुराने तरह का स्कूल होता था जो 100 साल पहले हुआ करता था. He added
लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली सेंचुरीज एगो, मतलब वर्षों पहले, 100 साल पहले। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी बहुत ही दुखी थी। वेल आई डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मुझे नहीं पता है कि उस समय बहुत ही कैसे किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, मतलब उसके शोल्डर पर बुक को रख करके, कंधे पर बुक को रख करके उसने कुछ देर तक पढ़ा और फिर लास्ट में थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री वे में उसने कहा कि ठीक है जो कुछ भी हो, कम से कम उनके पास टीचर्स तो हुआ करते थे। श्योर दे हैड अ टीचर, नाउ दिस वर्ड्स आर स्पोकन बाय टॉमी। ओके, श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ जरूर उनके पास टीचर तो थे, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। मतलब ये रेगुलर टीचर नहीं हुआ करते थे, ये एक आदमी हुआ करते थे। ये टॉमी पहले की बातों को बता रहा है। और ये लोग टॉमी, और आप लोग जानते हो, यू ऑल नो दैट मार्गी एंड टॉमी इज बिलोंगिंग टू 2155 सेंचुरीज। ओके, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? अब ये मार्गी पूछ रही है। नाउ दिस क्वेश्चन इज बीइंग पुट अप बाय द मार्गी। अ मैन, एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। और उसने बच्चों को, मतलब नाउ दे आर एक्सप्लेनिंग कि पहले जो टीचर हुआ करते थे बच्चों को होमवर्क्स देते थे और फिर उसको एक्सप्लेन किया करते थे, फिर क्वेश्चंस देते थे। ठीक है, अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। नाउ वंस अगेन दिस वर्ड्स आर स्पोकन बाय द मार्गी। मार्गी कह रही है कि आदमी तो इतने स्मार्ट नहीं होते हैं जितने कि एक रोबोट या फिर मैकेनिकल टीचर्स। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। अब टॉमी कह रहा है कि नहीं, वास्तव में वो तो होते हैं, मेरे पापा उतने तेज हैं जैसे कि एक टीचर, जैसे कि एक मैकेनिकल टीचर, वो सब कुछ जानते हैं जितना कि एक मैकेनिकल टीचर जानता है। ही कैन नॉट, अ मैन कैन नॉट नो एज मच एज अ टीचर। उनके टीचर, मार्गी अपने टीचर के बारे में कह रहे कि नहीं, एक आदमी, मतलब उसको, उसके दिमाग में हुआ ही नहीं था कि टीचर भी आदमी होते हैं। आदमी जो पहले टीचर हुआ करते थे, क्योंकि उसने तो कभी आदमियों को टीचर के रूप में देखा नहीं है। सी डिड नॉट हैव सीन द मैन इन द फॉर्म ऑफ टीचर, उसने तो सिर्फ रोबोट्स को ही देखा है। तो वो कह रहे कि नहीं, आदमी कैसे इतना कुछ जान सकता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट। आई बेट मतलब अब वो शर्त लगाती है, वो कह रहे कि वो बहुत ही कम, उतना अधिक नहीं जानते होंगे। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी अब उसके बारे में बहस करना नहीं चाहती थी। सी सेड आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं कोई भी अजनबी व्यक्ति नहीं चाहता हूँ जो मेरे घर पर आए और मुझे पढ़ाए। नॉट टॉमी। टॉमी अब स्क्रीम करता है, एकदम लाफ्टर, तेजी से वो चिल्लाते हुए हंसता है। यू डू नॉट नो मच मार्गी, तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं पता है। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। टीचर जो है घरों में नहीं रहा करते थे, मतलब आकर के घरों में नहीं पढ़ाते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और सारे जो बच्चे होते थे उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, जिनको हम लोग आज स्कूल भी कहते हैं। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स? और वहाँ पर सारे बच्चे जाकर के पढ़ते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग। और सारे बच्चे एक ही चीज़ों को समझते थे, मतलब अलग अलग चीज़ें नहीं बताई जाती थी। श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज, तो वो कह रहे हैं कि तब तो फिर उनके जो एज भी होंगे सेम ही रहे होंगे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैड टू बी एडजस्टेड टू फीट एंड माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माँ कहती है कि सारे बच्चों को अपने से एडजस्ट करना पड़ता है, अपने माइंड को एडजस्ट करना पड़ता है, और जिस एज के वो होते हैं उनको अलग अलग एज से भिन्न भिन्न प्रकार से पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट do it that way then. If you do not like it, you do not have to read the book. I did not say I did not like it. Margie said quickly. मार्गी ने कहा कि नहीं, ये सब मुझे पसंद नहीं है। She wanted to read about those funny schools. और अब वो उन स्कूल्स में पढ़ना चाहती थी, मतलब 150 साल पहले जो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, they were not even half finished when Margie's mother called Margie school। मतलब वो जब बुक अभी आधा भी नहीं ख़त्म हुई थी तब तक मार्गी की माँ ने चिल्लाते हुए कहा मार्गी स्कूल, मतलब स्कूल। स्कूल उनके घर पर ही था, ठीक है ना, एक रोबोट की तरह।
मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्गी ऊपर देखियो कि नहीं मम्मा अभी तक नहीं, मतलब स्कूल नहीं जाना है, मतलब उस स्कूल में नहीं पढ़ना है जो उसके घर पर था। नाउ सेड मिसिस जोन्स, अब मिसिस जोन ने कहा एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये शायद टॉमी के लिए भी स्कूल का टाइमिंग हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं इस स्कूल के बाद इस किताब को जो एटिक के पास उन्होंने पाया था दोनों ने, क्या मैं इसके वो स्कूल के बाद तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड, मिला नॉन चैंटली, नॉन चैंटली मतलब क्या होता है, मतलब उसने उस अंदाज में कहा कि हाँ तुम पढ़ सकते हो शायद। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, मतलब वो सीटी बजाते हुए फिर वो वहाँ से मुड़ा। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और उस बुक को उसने आर्म के नीचे रखा। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the super proper plot slot. रोबोट ऐसे ही बोलता है ना, जब उन्होंने स्क्रीन को लिट अप जलाया मतलब ऑन किया, तो उसका जो स्कूल का टीचर था उसने ऐसे ही बोलना शुरू किया, मतलब आज वो अर्थमेटिक का लेसन पढ़ाने जा रहा था, मैथ्स का, तो वो ऐसे बोल रहा था रोबोट की तरह, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं वैसे नहीं, वो रोबोट था तो वो बोल रहा था दैट वाज स्पीकिंग लाइक दिस। ये लाइन है यहाँ पर, आप अपने बुक में लाइन देखिए, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। ठीक है, ऐसे रोबोट बोलता है। मार्गी डिड सो विथ अ साई, मतलब मार्गी ने ऐसा किया लेकिन बहुत ही एक आँख भर रही थी कि अब उसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। एक्चुअली सी वॉज नॉट विशिंग टू स्टडी, सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स वाज अ लिटिल बॉय, एंड वो उस स्कूलों के बारे में सोच रही थी जब उसके दादा भी छोटे बच्चे हुआ करते थे और स्कूलों में जाया करते थे, जैसा कि उसने उस बुक में पढ़ा था। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और सारे बच्चे हंसते और खेलते हुए स्कूल के आंगन में आया करते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लास स्कूल रूम, और एक साथ स्कूल रूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल ख़त्म होता था तो साथ में लड़के स्कूल से घर वापस आते थे। उन सारी चीज़ों के बारे में मार्गी वो सोच रही थी। अब उसका मन जो है अपने रोबोटिक टीचर्स को पढ़ने में नहीं लग रहा था। दे लर्नड द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर इन द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। अब वो ये भी सोच रही थी कि वो सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे जिसको वो एक दूसरे से बात भी कर सकते थे अपने होमवर्क के बारे में। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सबसे बड़ी बात ये थी उन बच्चों के लिए कि उन बच्चों के पास टीचर जो थे वो आदमी हुआ करते थे, लोग हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब उसका मैकेनिकल टीचर उसके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। वो सब्जेक्ट क्या पढ़ रही थी, मैथमेटिक या अर्थमेटिक, ठीक है ना। तो फ्लैश क्या करता है, व्हेन वी एड द फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, मतलब जब हम फ्रैक्शन, आप लोग भी मैथ्स में पढ़ते होंगे ना, फ्रैक्शंस 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू हाउ मच, तो वो फ्लैश कर रहा था और लिख रहा था व्हेन वी एड द फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 इज इक्वल टू, ठीक है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। अब मार्गी यही सोच रही थी कि पहले वाले दिनों में, पुराने दिनों में बच्चे कितने खुश हुआ करते थे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, अब यही चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, और वो यही चीज़ सोच रही थी कि जो पहले वाले बच्चों का द फन दे हैड, बहुत ही ज़्यादा उनको मज़ा मिलता था, वो था द फन दे हैड। ओके, so dear students, in the next video I will explain question and answer of your chapter, so be ready with your copy and pen so that you could just note down your question and answer. Okay, thank you। और जिन्होंने भी इसको एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझा, they will write that sir I understood। okay, very good students।